Gopinath, Gopinath, Mama nivedana shuna, Shai Durjana sada kamarata, Krishna hi mora gona, Gopinath, 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 Gopinath. Jai. Mama nivedana shuna, बैठे बैठे फोन रखो Vishayadurjana से मुंह से sada पगड़ी भी ऐसे kamarata, रखे हैं। Vishunani moraguna, Gopinath, Gopinath. আমার ভরসা তুমি, আমার চরণে লইল শরণা, তোমার কিঙ্কর আমি, গোপীনাথ, 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 গোপীনাথ। আমার ভরসা তুমি, তোমার চরণে লইল শরণা, তোমার কিঙ্কর আমি, গোপীনাথ, গোপীনাথ, Gopinath, Gopinath, mane shodhibe more, na jani bhakti karme jada mati, नरचे संसार घोर, गोपीनाथ, 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 गोपीनाथ। गाइए। के मने शोधिबे मोरे, न जाने भक्ति कर्मे जड़ माती, पड़े छे संसार घोरे, गोपीनाथ, 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 गोपीनाथ। सकल तोमार माया, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नाही काया, गोपीनाथ, 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 गोपीनाथ। गाइए। सकले तोमार माया, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नाही काया, गोपीनाथ,
गोपीनाथ गोपीनाथ नियत चरण स्थाना मागे ये पामर कांदिया कांदिया करह करुणादान गोपीनाथ 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 गाइए नियत चरण स्थाना मागे पामर कांदिया कांदिया करह करुणादान गोपीनाथ 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 तुमित सकल पार दुर्जना तारिते तुम्हार सकति के आचे पापी हार गोपीनाथ 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 तुमित सकली पार दुर्जन तारिते तुम्हार सकति के आचे पापी रे गोपीनाथ 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 तुमि कृपावर वर जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैले सुविस्तार गोपीनाथ 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 गई तुमि कृपा पर जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैले सुविस्तार गोपीनाथ 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 स्वामी की दोषे दोषी असुर सकल पाइल शरण विनोद थाकिल बसी गोपीनाथ 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 गाइए आमी के दोषे दोषी असुर सकल पाइल शरण विनोद थाकिल पासे गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. गाइए. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गाइए. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gauranga, Gauranga, Gaura Hari, Nitai Gauranga, 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 Gaura Hari, Nitai Gauranga.
Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gauranga, Gaura Hari, Jai Sacinandana, Gaura Hari, Jai Sacinandana, Gaura Hari, Jai Gaura, Gaura, Jai Sacinandana, 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 Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura Hari, Jai Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura Hari, Dhana, Gaura Hari, Gaura Hari, Dhana, Gaura Hari, Jai Nityananda, Pranadhana, Gaura Hari, Pranadhana, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura Hari, Jagannatha Pranadhana, Gaura Hari, Pranadhana, Gaura Hari, Jagannatha Pranadhana, Gaura Hari, Jagannatha Pranadhana, Gaura Hari, Jagannatha Pranadhana, Gaura Hari, Jagannatha Pranadhana, Gaura Hari, Jaya Radha Rasa Bihari, Radha Rasa Bihari, Radha Rasa Bihari, Shri Radha, Jai Radha Rasa Bihari, Radha Rasa Bihari, Bihari Radha, Ras Shri Bihari Radha, Radha, Jaya Gaura Nita, Radha Ras Bihari, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jai Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranita, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranita, Jaya Gauranita, Jaya Jagannatha, Gauran, Jaya Baladeva, Subhadra, Jaya Sudarshana, Jai Jai Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadra, Jaya Sudarshana, Jai Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadra, my Jai Sudarshana, Jaya Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva, Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva, Jai Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva, Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva, Jaya Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jai Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jai Jaya Gurudev, Jai Jai Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jai Gaura Haribo, 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 Jai Gaura Haribo, Jai Gaura Haribo, 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 Jai Gaura Haribo.
संकीर्तन की जय। आप सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय राष्ट्रपति सूचन की जय। जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है थोड़ा जल्दी आया कीजिए। मेरा ध्यान ही नहीं एक्चुअली, मुझे लगा 15 मिनट हो गए लेक्चर चालू होके, लेकिन 25 मिनट हो गए, इसलिए हमारा कीर्तन इतना लंबा चला। तो शुरू करते हैं हम लोग। मंगलाचरण किसी की बोलने की इच्छा है, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। दंड। आवाज आ रही है ना प्रभु जी? आवाज जा रही है अच्छे से। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवशाधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, संतान प्रणाम। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा। मुझे कोई गलती तो नहीं हुई ना? नहीं माता जी, परफेक्ट। अच्छा, जी धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर हर बार कोई अलग अलग भक्त बोलेंगे सैटरडे में। हम तो बोलते ही रहते हैं, आप बोलेंगे तो और अच्छा जी लगेगा। प्रभु। हाँ माता जी, ठीक है। तो बहुत सारे भक्त लोग नहीं आए हैं, मैंने मैसेज पहले ही डाल दिया था। जो प्रभु जी का एक प्रोग्राम चालू है वहाँ पे, तो बाकी अन्य भक्त वहाँ पे जाए, और जो अन्य भक्त बचे हैं वो यहाँ पे आए, ठीक है। तो इसलिए आज की भारी मात्रा की संख्या के साथ शुरू करते हैं। तो हम लोग कल पिछले सैटरडे कहाँ पे थे, किसी को याद होगा? ज़्यादा तो नहीं याद होगा, क्योंकि मैंने जब लेक्चर सुना मेरा, तो इतना पहले के इसमें ही हमारा हुआ था, बाद की बात हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चर्चा हुआ था। तो पिछली बार हमने कहाँ पे समाप्त किया था, जब भी ये धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के पास हाँ, हरे कृष्ण। तो धृतराष्ट्र क्या करते हैं, धृतराष्ट्र के पास ये विदुर आते हैं, फिर विदुर कैसे उनको थोड़ा टैकल करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे घर में बहू आई है, फिर ये खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि दुर्योधन ने जीती है, लेकिन वास्तव में दुर्योधन नहीं जीतता, जीतते हैं कौन? पांडव।
तो जब उनको दुर्योधन आके बोलता है कि आपको क्या हुआ डैड, ऐसा क्या कर रहे हो आप, इतना क्यों खुश हो रहे हो, पांडव ने जीते हमने थोड़ी जीते। तो वो भ्रमित हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अरे ये कैसा हो गया। फिर वो दुख नहीं प्रकट करते क्योंकि विदुर सामने ही खड़े होते हैं, और राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो पार्शल नहीं हो सकता, है ना। राजा का मतलब सबको एक समान न्याय की दृष्टि से देखे। हालांकि वो पिता थे तो अपने बच्चे से आसक्त भी थे, मोहित थे, ठीक है। तो वो बाद में फिर विदुर जाने के बाद उनको बताते हैं, विदुर जाने के बाद उनको बताते हैं कि इस तरह मैं मुझे भी लगा कि तुमने जीता है। फिर दुर्योधन बताते हैं कि अरे हमने नहीं जीता, हमारी तो पूरी वहाँ पे जो हमारी इतनी इज्जत थी वो पूरी वहाँ पे मिल गई। तो ऐसा सब सुनाकर ये फिर थोड़ा षड्यंत्र चालू करते हैं। षड्यंत्र क्या चालू करते हैं ये, कि अभी अभी इनकी पांडव जो थे वो भी द्रौपदी, द्रौपदी उनका ससुराल, द्रौपदी का जो पांचाल राज्य है द्रुपद महाराज का, वो उनका क्या हो चुका है, वो उनका हो चुका है, वो उनका हो चुका है ससुराल। तो अभी वो सोच रहे थे अगर ये पांडव लोग पांचाल नरेश के साथ अगर मिल जाते हैं, पांचाल नरेश के साथ मिल जाते हैं, एक मिनट जरा, तो पांचाल नरेश के साथ ये अगर मिल गए तो क्या हो जाएगा, उनकी जो पकड़ा है वो भारी हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, अभी ही जाते हैं, तुरंत युद्ध करते हैं, क्योंकि उनके पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ठीक है। 5 पांडव निहत्ते हैं, तो उनको हम मार डालेंगे। पहले काम करेंगे, पहले भीम को मारेंगे, भीम को पहले उनको साइड कर लेंगे क्योंकि भीम ज़्यादा ताकतवर है। भीम को अगर साइड में कर लेंगे तो जो बाकी के जो 4 पांडव है थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएँगे, तो उनको फिर मारेंगे। फिर ऐसे षड्यंत्र करना शुरू करते हैं। तो फिर कर्ण कर्ण बीच में बोलते हैं। कर्ण बोलते हैं कि अरे तुम ये क्या मार देंगे, फूट डलवा देंगे, राजनीति की भाषा क्या खेल रहे हो। क्षत्रिय हो पहली बात, क्षत्रियो का पहला कर्तव्य तो अ, वी, वीर रस, है ना, शौर्यता दिखाना होता है। और तुम ऐसे इसमें पॉलिटिक्स खेलोगे तुम। अभी हम जाते हैं, उनके पास कोई नहीं है, उनको युद्ध के लिए ललकारेंगे, ऐसे डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। पहले ऐसे युद्ध हुआ करते थे कि ऐसे जैसे देखिए अभी आजकल के जो युद्ध हो रहे हैं हमने सुना, ठीक है, बहुत लोगों ने सुना होगा। अब माताएं ज्यादातर ये इन चीजों में नहीं पड़ती, लेकिन अभी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं ना, अलग अलग देश है, जैसे लेबनान है ना, ऐसे देशों में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। तो प्रभुपाद प्रभुपाद अपने तात्पर्य में स्पष्टीकरण क्या देते हैं, पहले के जो युद्ध हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, धार्मिक युद्ध बोला जाता था उनको, ठीक है। धार्मिक युद्ध मतलब सूर्यास्त सूर्योदय से लेके सूर्योदय से लेके सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक क्या होता था, सूर्योदय होगा, फिर उसके बाद सूर्यास्त तक, उसी के बीच में युद्ध किया जाएगा, ठीक है। उसी के बीच में युद्ध किया जाएगा, उसके अलावा युद्ध नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब और जो ये शाम के टाइम पे जो युद्ध हुआ करता था वो वो आसुरिक युद्ध बोला जाता था, वो धर्म युद्ध नहीं बोला जाता था, वो अधर्मिक युद्ध होता था वो, ठीक है। तो प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में बताते हैं कि प्रभुपाद की बुक्स का कितना महत्व है, मैं यहाँ पे प्रस्तावित करना चाहता हूँ कि देखिए प्रभुपाद के हर एक तात्पर्य में ना, तो जीवन शैली को, हमारी जीवन शैली को कैसे जीना चाहिए, प्रभुपाद के हर एक तात्पर्य में से हम एक एक पॉइंट निकाल सकते हैं। प्रभुपाद के तात्पर्य इतने आपको, आप अगर पढ़ते होंगे प्रभुपाद की बुक्स, तो उसमें से हमें समझता है कि प्रभुपाद का जो एंगल है ना, जो दृष्टिकोण है, मतलब नॉट नॉट प्रभुपाद का एंगल, प्रभुपाद के ने जो अपने गुरु शिष्य परंपरा से जो प्राप्त किया हुआ एंगल है, उनका खुद का कुछ नहीं है, मेरे मन का कुछ बताऊंगा, जैसे आजकल के लोग बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये है, वैसा है, वो है। नहीं सर जी, आपको ऐसा लगता है वैसा लगता नहीं जाएगा। जो शास्त्रों में क्या लगता है, शास्त्रों को क्या लगता है वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। फिर वो पूरे समाज के लिए लागू होगा। जो आपकी सोच है वो आपकी सोच तक ही सीमित है। लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य, यस माता जी कुछ क्वेश्चन है, अनिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, माता जी। प्रभु जी क्लास चालू रहती तो क्या माता प्रभु जी हम माला कर सकते हैं प्रभु जी? नहीं माता जी, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा बेटा। माता जी, हाँ देखिए, अभी माला नहीं कर सकते क्योंकि क्योंकि श्रवणम एक अलग विधि है, ठीक है? और ये है हमारे भजन में आता है, ठीक है? तो मतलब क्या आप हरिनाम के प्रति भी अपराध करते हो? और जो वक्ता है उसके प्रति, मेरे प्रति अपराध किया क्या चलेगा, वो कोई बात नहीं। लेकिन जनरली क्या किया जाता है, सुनते नहीं है लेक्चर, लेक्चर सुनते-सुनते माला नहीं करते, वो अपराध में काउंट होता है। अच्छा हुआ अच्छा, आपने पूछा। मुझे नहीं पता था क्योंकि मुझे ऐसा क्वेश्चन हुआ ना, क्योंकि मैं माला कर रही थी ना, तो मेरे मन में हमेशा मतलब ऐसे हो रही थी कि मैं क्वेश्चन पूछूं, पता नहीं अपराध तो नहीं लगेगा कि लगेगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा प्रभु जी। हाँ, नहीं, नहीं, देखो अभी जब मैं मन में क्वेश्चन आता है ना तो उसको तुरंत पुष्टि कर लेनी चाहिए। तुरंत मतलब लेक्चर के बाद भी कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है ज़्यादा डिले नहीं करना जी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे मन में अगर संशय है, तो जैसे समझो मैं एक जगह पे बैठा हूँ, ठीक है? तो मेरे जगह पे समझो मेरी इतनी जगह, तो मैं इतने जगह पे बैठा हूँ, ठीक है? थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, इसके पीछे का हमें अ, गूढ़ रहस्य भी पता जी होना चाहिए। जी प्रभु जी, हरे अगर मैं समझो कृष्ण हरे इस जगह कृष्ण। में बैठा हूँ, ठीक है? तो और अन्य कोई मैं नहीं बैठ सकता, बराबर? ठीक है? और थोड़ी-सी अगर मेरे पास जगह जी खाली हो, कोई तो एक छोटा बच्चा वहाँ पे बैठ सकता है। तो संशय क्या करता है ना, संशय क्या करता है, कोई डाउट होगा ना वो बैठ जाता है। फिर बैठने के बाद वो धीरे-धीरे पूरी जगह ले लेता है। फिर श्रद्धा के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये तो आपका एक छोटा-सा सवाल था। लेकिन अन्य कोई सवाल अगर होता है ना भक्ति के रिलेटेड, तो उसको तुरंत पूछ लेना चाहिए। क्योंकि संशय क्या करता है, संशय पूरी हमारी श्रद्धा को पूरी ढक लेता है और हम भक्ति से दूर हो जाते हैं। अच्छा ये मैं एक नॉर्मल उदाहरण जी बता रहा हूँ क्वेश्चन के बारे में। हाँ, तो और माला की बात अगर है तो माला नहीं करना चाहिए लेक्चर सुनते हुए, ठीक है? जैसे ही कुछ जी लेक्चर हरे चालू हो जाए तो कृष्ण। माला बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो लेक्चर बंद कर देना चाहिए, जी ठीक है? क्योंकि दोनों जी प्रभु जी, हरे भक्ति के अंग हैं, कृष्ण। जी जी ठीक है? दोनों भक्ति के अंग हैं, अलग-अलग समय है उनका, ठीक है? जी प्रभु जी, धन्यवाद, मुझे नहीं पता था, हरे आप ही कृष्ण। बताओ। जैसे मंदिर में भी ऐसे ही होता है, पहले जप होगा सुबह, फिर बाद में आरती वगैरह होगी, फिर बाद में सब भागवतम क्लास के लिए बैठेंगे, ठीक है? हाँ, तो हम कहाँ पे थे? अ, हाँ, हम थे अर्जुन। प्रभुपाद के तात्पर्य ऐसे हुआ करते थे ना कि अभी के जो जितने भी युद्ध वगैरह हो रहे हैं ना, ये क्यों हो रहे हैं? ये अधार्मिक युद्ध है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हमें एक छोटी-छोटी चीज़ है, जैसे कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे-कैसे छोटी-छोटी चीज़ें आपको मिलेगी। मतलब प्रभुपाद जी के ग्रंथ है ना पूर्णतम है, ये पूर्णतम है। किसी को आनंद चाहिए होगा, ठीक है? तो उसको आनंद भी मिलेगा वो पढ़ते-पढ़ते। किसी को ज्ञान चाहिए होगा, ज्ञान भी मिलेगा। किसी को दैनिक आचरण में कैसे दैनिक शैली जो अपनी है, उसमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, वो भी आपको समझेगा। पूर्णतः है, श्रील प्रभुपाद की जी बुक्स है ना, पूर्णतः है। जैसे आप देखोगे, इस्कॉन के डिवोटीज़ है ना, बाहर से ज्ञान नहीं लेते कुछ। मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि अगर एक समुद्र है, समुद्र किसी नदी के पास नहीं जाएगा कि अरे मेरा थोड़ा एक टैंकर खाली हो गया, मेरा भर दो थोड़ा टैंकर। नहीं, जाएगा ही नहीं, ठीक है? क्योंकि हमारी जो है ना पूर्णतम है। प्रभुपाद ने जो ग्रंथ दिए हैं हमें, पूर्णतम है, ठीक है? तो इसे बाहर से ज्ञान देने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आप बुक्स पढ़ोगे ना, बुक्स पढ़ते और बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत 10 साल लग जाएँगे, 20 साल लग जाएँगे, फिर आपके बाल सफ़ेद हो जाएँगे, फिर आप अपने आचरण में लाओगे, नहीं। क्षणेन मुमुचे, एकदम तुरंत हो जाता है, तुरंत। और सामने वाला जो बताने वाला होता है ना, वो अगर खुद भी वो फ़ॉलो करता होगा, तो ये हृदय टू हृदय का ये संवाद होता है। जैसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य ने जो लिखा है ना प्रभुपाद ने, वो प्रभुपाद अपने जीवन में उतारते हैं। इसलिए जो लोग पढ़ते हैं उनके भी जीवन में वो उतरता है अपने आप। क्योंकि यहाँ से अगर 5 एम्पीयर का करंट आप समझते होंगे, ये तार है समझो, ये तार है, यहाँ से 5 एम्पीयर का करंट छोड़ोगे और यहाँ पे 2 एम्पीयर का करंट निकल रहा है। मतलब क्या है? ये जो तार है ये शुद्ध नहीं है। ये 3 एम्पीयर का जो करंट है वो खा रही है। लेकिन तार अगर पूर्ण शुद्ध हो, है ना? तो यहाँ से 5 एम्पीयर का करंट आप छोड़ोगे तो यहाँ पे 5 एम्पीयर का ही करंट जाएगा। ठीक है? तो प्रभुपाद जो कि पूर्ण शुद्ध भक्त है, नित्य सिद्ध वैष्णव है, ठीक है? और भगवान के धाम के पार्षद है, उनके जो ग्रंथ है ये पूर्णतम है, ठीक है? नहीं पूर्णतम है। तो इसमें प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बता रहे हैं कि आजकल के जो और ये कोई साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता।
साधारण व्यक्ति ये चीज़ सोच भी नहीं सकता। अभी आप सोचिए, आपने कभी सोचा होगा क्या मुझे जो मैं बताऊँगा? प्रभुपाद एक तात्पर्य में बोलते हैं कि अभी के जो युद्ध हो रहे हैं, ये पूरे अधार्मिक हैं और जो पहले युद्ध हुआ करते थे, वो धार्मिक हुआ करते थे। पहले के जो युद्ध हुआ करते थे, आमने-सामने की पार्टी साथ में बैठती थी कि युद्ध की स्थली कहाँ पे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है? जैसे एक शादी कैसे डिसाइड करते हैं आमने-सामने वाले बैठ के, है ना? युद्ध कहाँ पे होगा, ठीक है? युद्ध कौन-सी भूमि पर होना चाहिए, ठीक है? इसलिए कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि, धर्म भूमि, है ना? धर्मभूमि कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना? समवेतायुत्सव मतलब धर्म क्षेत्र की भूमि पर ये लोग जमा हुए हैं, ठीक है? तो पहले ऐसा हुआ करता था कि सारे जो लोग थे ना, ये ऐसा बैठा करते थे, एक अपनी जगह डिसाइड करते थे, कहाँ पे युद्ध करेंगे, कितने बजे करेंगे, कितने बजे वो तो फिक्स ही होता था। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक उतने ही टाइम पे करेंगे। जब समझो सूर्य ढल गया, समझो मैंने तीर चढ़ाया है, नहीं तो तीर उतारना पड़ेगा, है ना? ऐसा ऐसा वहाँ पे एक एटिकेट हुआ करता था। और जब कोई ऐसे युद्ध में जब कोई वीर गति को प्राप्त करता था, तो फिर वो स्वर्ग की प्राप्ति करता था, ठीक है? स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन आजकल के जो युद्ध हो रहे हैं, है ना? समझो आजकल कैसे छोटे-छोटे युद्ध कैसे होते हैं? किसी ने किसी की गाड़ी ठोक दी तो उसको एक कॉलर पकड़ने उधर ही युद्ध करना चालू। वो इतने बैठते-बीठते नहीं है। खा बैर खा लो इसके लिए तो करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप सोचिए एक आजकल के कैसे युद्ध हो रहे हैं, ऐसे छोटे-मोटे, है ना? गाली-गलौज, ये सब भी नहीं हुआ करता था पहले, ठीक है? ये गाली-गलौज, है ना? अभी अभी के लोग तो इतने घबराते हैं, गालियों से ही उनको लगता है गालियों से ही हम युद्ध करेंगे, है ना? हाथ से हाथ पे चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये अधार्मिक युद्ध हुआ करते थे और आजकल इतना आसुरी प्रवृत्ति के युद्ध हो रहे हैं, ठीक है? आजकल बॉ एक शहर में बॉम्ब डाल दिया जा रहा है ना? बहुत सारे हम लोग बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस सुन रहे हैं, ठीक है? तो पहले ऐसा करता था कि बच्चे, बूढ़े, महिला, ये सारे ब्राह्मण ये सारे युद्ध भूमि से दूर रहेंगे, ठीक है? युद्ध भूमि से दूर रहेंगे और उनका जो क्या बोलते कैंप होता था, वहाँ पे वो रहा करते थे, ठीक है? तो ऐसा युद्ध हुआ करता था उस समय, ठीक है? तो और अभी के जो युद्ध हो रहे हैं, ये पूरे आसुरी युद्ध है। इसमें कई कई महिलाएँ विधवा होती हैं, ठीक है? कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कई पे तो बच्चे ही मर जाते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे आसुरी मतलब उसमें कुछ करुणा का पूरा अभाव है। आजकल के जो युद्ध हो रहे हैं, उसमें करुणा का बिल्कुल भी और पहले के ज़माने में ये देखा जाता था कि जो युद्ध होने वाला है, उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है? जैसे कोई भी हम चीज़ हम कर रहे हैं, तो पहले तो हमें उसका ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इस चीज़ करने के बाद उसका परिणाम क्या होगा। whimsically कोई भी जैसे पागल जैसे भी कोई चीज़ नहीं कर देनी चाहिए, ठीक है? कोई भी चीज़ करे तो उसका परिणाम क्या होगा? तो पहले युद्ध होता था तब ये सोचा जाता था कि परिणाम क्या होगा। लेकिन अभी नहीं सोचा जाता। इस देश ने उस देश पे बॉम्ब डाल दिया, ठीक है? तो ये देश नहीं सोचेगा कि अच्छा ये भी मेरे देश पे बॉम्ब डाल सकता है। नहीं, कुछ नहीं। कुछ प्री प्लानिंग नहीं है, कुछ आमने-सामने डिस्कशन नहीं है, कुछ नहीं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये आजकल के युद्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से अधार्मिक है। कैसे आजकल के युद्ध? अधार्मिक, ठीक है? तो ये ऐसे युद्ध हुआ करते थे पहले। तो फिर कर्ण ने बोला कि हम ऐसे युद्ध करेंगे ना, हमें क्या ज़रूरत है हमें पॉलिटिक्स खेलने की, भीम को एक अकेले दबोचने की और फिर चारों पांडवों को अकेले दबोचने की। तो ये सब करने की ज़रूरत है नहीं हमें। हम हमारे खुद में भी सामर्थ्य है, हम खुद लड़ेंगे उनसे, ठीक है? तो ऐसा कर्ण का सजेशन था। तो फिर द्रोणाचार्य आए यहाँ पे, द्रोणाचार्य आए, भीष्म आए, पितामह भीष्म, फिर उन्होंने इन लोग की बातें सुन ली, है ना? ये मंडली की जो बातें चल रही थी उन्होंने सुन ली। तो द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह ने बोला कि आप लोग युद्ध की बातें किस बेसिस पे कर रहे हो? पहली बात तो ये आपका राज्य है ही नहीं, धृतराष्ट्र को समझाया। ये पहली बात तो आपका राज्य है ही नहीं। आपको एक प्रतिनिधि के तौर पे खड़ा किया गया था, ठीक है? आपको एक ज़िम्मेदारी दी गई थी कि आप उसको ओन नहीं करते आप उसके मालिक नहीं हैं। जैसे जो सिंहासन है, आपको राज्याभिषेक के दिन ही बताया गया था कि जब आप इस सिंहासन पे बैठ रहे हैं, तो आप सिर्फ़ प्रतिनिधित्व कर रहे हो उस सिंहासन का। आप राजा नहीं हो और आप राजा का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि राजा असल में पांडु ही थे और इनको क्यों नहीं बनाया गया था कि
क्योंकि राजा की इंद्रिय अपूर्ण नहीं हो सकती। जैसे हाथ टूटा हुआ राजा नहीं हो सकता, ठीक है? अंधा राजा नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र वैसे अंधे थे। तो अ, धर्म के एक शास्त्र प्रमाण से, शास्त्र के बेसिस पे अगर देखा जाए, तो धृतराष्ट्र राजा बनने के लायक नहीं थे, लेकिन बल्कि वो राजा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है? और वो उन्होंने अपने जो पोजीशन दिया था उसको वो आसक्त हो गए। फिर उन्होंने ही वो ही अपना जो जो भी वो इंद्रप्रस्थ है, ठीक है? वो हस्तिनापुर है, वो उनका वो समझने लग गए। तो यहाँ पे भीष्म पितामह ये कोट करना चाह रहे थे कि कभी-कभी हमें भी थोड़ी-थोड़ी ज़िम्मेदारी दी जाती है ना? कभी-कभी हमें भी थोड़ी-थोड़ी सेवाएँ दी जाती है ना? तो सेवा करते-करते हम क्या करते हैं कि नहीं, हाँ, अभी हमें मुझे मालिक बना दिया गया है, ठीक है? लेकिन हमें क्या बनाया जाता है, हमें बोलने के टाइम पे दिया जाता है, माता जी ये लीजिए सेवा, माता जी, प्रभु जी ये लीजिए सेवा। लेकिन वो सेवा को करते-करते थोड़े टाइम बाद क्या होता है, हम समझने लगते हैं, अरे हम अभी अभी हम ही मालिक हैं इसके, है ना? हम ही मालिक हैं। वास्तव में आप मालिक होते ही नहीं हो, ठीक है? तो ये भेद यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं भीष्म पितामह, ठीक है? कि आपको राजा का प्रतिनिधित्व करने बोला था, ठीक है? फिर भी अपने आप को और आपकी अभी इच्छा है कि दुर्योधन राजा बने, लेकिन अगर नीति शास्त्र के अनुसार देखा जाए, तो आपका जो लड़का है वो राजा बनने के लायक भी नहीं है वैसे, क्योंकि वो अधार्मिक है, प्रजा भी उसे नहीं पसंद करती। दूसरी चीज़, अगर पांडु के पुत्र अगर है, पांडु के जगह पे आप राजा बने थे, तो पांडु के जाने के बाद उसके पुत्र अगर लायक होते हैं राजा बनने के लिए, तो पूरा जो साम्राज्य है वो पांडु पुत्र को जाएगा, मतलब युधिष्ठिर को जाएगा। लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी अभी इन लोग का घर का ही था सब। पूरे जो ये विदुर उनके घर के थे, ठीक है ना? ये द्रोणाचार्य उनको उनके कुलगुरु थे, कुलगुरु नहीं, उनके मिलिट्री साइंसेस के सिखाने वाले थे, ठीक है? गुरु थे। कृपाचार्य थे, उनके ही गुरु थे, कुलगुरु थे। पितामह भीष्म उनके ही परदादा दादा थे। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, तुम्हें भी आसक्ति हो गई है तुम्हारे पुत्रों से, तो तुम काम करो, एटलीस्ट उनको ये मारने मरने की तो बातें मत करो, है ना? पहली बात तो राज्य पे ही हक नहीं है, और दूसरी बात जिनका हक है तो उनको सीधा मार रहे हो। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन देते हैं कि देखिए, अभी आप उनको बुला लीजिए, अभी हमें पता तो चल गया कि वो जिंदा है, तो उनको आप रिटर्न बुला लीजिए घर पे, है ना? हस्तिनापुर में बुला लीजिए, उनका अच्छे से स्वागत कीजिए, है ना? एक स्नेह का भाव दिखाइए, उनको भी लगना चाहिए कि हमारे 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 भी कोई है। ऐसा नहीं है कि आप मर गए थे, ये समाचार हमें पता चला, फिर उसके बाद अगर ये पता चला है कि ये जिंदा है, तो उनको लगना चाहिए कि उनके लिए भी हम लोग स्नेह रखते हैं। तो इस चीज़ के आप पहले तो आप उनको हस्तिनापुर में बुलाइए। हस्तिनापुर में बुलाने के बाद आपको पूरा राज्य नहीं देना है, मत दीजिए, लेकिन आधा राज्य दे दीजिए एटलीस्ट, ठीक है? तो आधा राज्य दे दिया, तो ये और धृतराष्ट्र मान जाते हैं, ठीक है? लेकिन अंदर से वो इस चीज़ के लिए भी नहीं मानते, क्यों? पुत्र मोह के कारण, है ना? क्यों नहीं मानते? पुत्र मोह के कारण। पुत्र मोह की पट्टी ये पूरी इतनी पहले से ही अंधे हैं, ऊपर से वो पुत्र मोह की भी पट्टी लगा लेते हैं, ठीक है? इसके लिए वो अपने बच्चों के डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा कितना लायक है, कितना नालायक है, ये नहीं देखा उन्होंने। वो उन्हें बस ये चाहिए, मैं राजा हूँ, मेरा बेटा भी राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा, है ना? उन्होंने ये सिद्धांत के ऊपर वो अपना सोच विचार कर रहे थे। लेकिन पितामह भीष्म ने उनको, पितामह से तो उनकी बात वो टाल भी नहीं सकते थे, लेकिन अंदर से वो इस चीज़ के लिए भी राज़ी नहीं थे कि वो उनको राज्य दे सकें। फिर उन्होंने बहुत ही सोच विमर्श किया। द्रोणाचार्य जी ने भी बोला कि ये बहुत ही सही बात बोल रहे हैं पितामह भीष्म, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। तो उन्होंने बहुत विचार विमर्श करके फिर उन्होंने सोचा कि पांडवों को खांडव दिया जाए। क्या दिया जाए पांडवों को? खांडव, जो कि पूरा एक रेगिस्तान के समान था। ना वहाँ पे एक जीव था, कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक है? पूरा रेगिस्तान के असुर लोग रहते थे उस जंगल में, वो कथा बाद में आएगी, ठीक है? किस तरह से वो सर्प होता है वहाँ पे। तो बड़े ही सोच विचार करके ये क्या करते हैं, जो खांडव राज्य है इनके हवाले करते हैं। पहले तो उनको अवभक्त करते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, ठीक है? पूरे राज्य में अनाउंसमेंट कर देते हैं कि पांडव लोग आ रहे हैं, पांडव जिंदा है। लेकिन ये बाकी जनता जनार्दन पूरी खुश है, लेकिन जो दुर्योधनन पार्टी है वो खुश नहीं है।
वो बस चेहरे पे दिखा रहे थे, अरे हमारे भाई लोग आ गए, क्यों आ गए आप लोग? तो ये लोग ऐसा मन में सोच रहे थे, ठीक है? तो जब ये हुआ, अब हुई कुछ कुछ दिनों बाद उन्हें ये प्रस्ताव रखा गया कि देखिए अभी दुर्योधन को भी राजा बनना है, धृतराष्ट्र का मोह है, तो आपको हम खांडव रस देते हैं। और उन्होंने भी कुछ आसक्ति, बल्कि ये कोर्ट केस कर सकते थे इनके ऊपर, क्या कि हमें पूरा राज्य देना चाहिए, मैं पांडु का पुत्र हूँ, मैं ज्येष्ठ हूँ, मुझे पूरा राज्य मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने जितना उनको मिला, मिला मतलब क्या, उनका ही था। लेकिन ये वैष्णव का भाव होता है कि उन्होंने जो मिला है उसमें वो संतुष्ट थे, जो उनको दिया गया उसमें वो संतुष्ट थे, उसमें वो अ, तर्क वितर्क नहीं करते बैठे कि अरे मुझे इतना चाहिए, मेरा इस पे हक है, ठीक है ना? पहली बात तो वैष्णव कभी हक जताते नहीं है, ठीक है? वैष्णव कभी भी किसी चीज से आसक्त नहीं रखते, है ना? तो ये युधिष्ठिर महाराज जी का भाव था। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने क्या किया, वो उसे एक्सेप्ट कर लिया और फिर खांडव चले गए। खांडव जब वो चले गए तो देख रहे हैं दूर दूर तक कुछ कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी जगह पे इन 5 भाइयों ने खुद अपने हाथों से क्या किया, पहले तो उस राज्य की बाउंड्री बनाई, फिर धीरे-धीरे लोगों को पता चला कि अच्छा खांडव करके भी ऐसा कुछ है, ठीक है? तो लोग धीरे-धीरे शिफ्ट होना चालू हुए, क्योंकि जनता का अपना जो ज़्यादातर मोह था, ज़्यादातर वो प्यार किससे करते थे? युधिष्ठिर महाराज जी से करते थे। उनको पता था दुर्योधन कैसा है। तो ये धीरे-धीरे क्या हुआ, ये जो खांडव प्रश्न है, वो खांडव प्रश्न में शिफ्ट होने लगे। ये हस्तिनापुर से खांडव में शिफ्ट होने लगे, ठीक है? फिर इन्होंने क्या किया, अपने ही हाथों से, फिर जो लोग आते थे यहाँ पे, ठीक है? फिर जो लोग आते थे फिर वो भी सेवा में जुड़ गए। उन्होंने भी पूरा ये राज्य अपने हाथों से बनाया, जितने भी लोग वहाँ पे आए थे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे आचार्य ये बताते हैं कि किस तरीके से एक ऐसी जगह, एक बंजर भूमि, जो एक अनप्रोडक्टिव पार्ट था पूरे हस्तिनापुर का, वो अभी दूर हो चुका है, एक अभी अलग राज्य बन चुका है। तो ऐसे स्थान पे पांडव गए, पांडवों ने ये नहीं देखा कि अरे यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे भी कैसे, देखो हमें कैसे जगह दे दी, फिर से जाएंगे, फिर से दूसरा राज्य मांगेंगे, ये नहीं करते बेटे पांडव। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भक्तों की जो स्थिति होती है, संतुष्ट होते हैं भक्त, है ना? और वहाँ उन्होंने यहाँ पे ये नहीं किया। अभी आजकल बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मंथ चल रहा है, ठीक है? उसमें कई भक्त लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं, वहाँ वो एरिया बराबर नहीं है, उधर के लोग मतलब एकदम नर्क नर्क जाने वाले हैं वो लोग, और बिल्कुल भगवत गीता नहीं लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं हो पाएगा, वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। अरे नहीं नहीं, अभी 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 लोग कहाँ पे गीता लेते हैं? अभी गीता लेना नहीं चाहते लोग, है ना? अभी सबके पास गीता है, भगवत गीता है। अभी अभी भगवत गीता नहीं जाएगा, नहीं नहीं। ये ऐसी ऐसी चीजें नहीं करते, है ना? वहीं पे बहुत सारे लोगों के पास भगवत गीता बटनी बाकी है, ठीक है? बहुत सारे लोगों के घर में है नहीं, लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग, मेरा खुद का अनुभव है, मैं उनको पूछता हूँ, लीजिए प्रभु जी भगवत गीता, आपके घर में है? सही में? हाँ है। ऐसा करते हैं ना, लोग झूठ बोलते हैं, लोग वो सरेआम झूठ बोलते हैं, ठीक है? उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता भगवत गीता है नहीं है। लेकिन ये हमारे ऊपर है, हमें उनको कितना हम भगवत गीता का महत्व उन्हें बता सकते हैं, ठीक है? उनको उनको बस ऐसे ही लगता है ना, जैसे एक नोटबुक है, नोटबुक के समान ही उनको भगवत गीता लगती है, उनको भगवत गीता का महत्व नहीं पता। अभी के जनरेशन के जो बच्चे हैं, है ना? जो अभी अभी के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको ये भी नहीं पता भगवत गीता क्या है, अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है, उनको ये भी नहीं पता, ठीक है? जैसे जैसे एक कागज का टुकड़ा होता है, उसे हम फेंक देते, उतना उतना हम पास में नहीं रखते, ठीक है? लेकिन वही कागज का टुकड़ा अगर नोट बन जाए, तो क्या हम उसको ऐसा ऐसा करके फेंक देंगे क्या? नहीं। लेकिन है तो कागज ही, बराबर? है तो कागज ही, वो कागज का टुकड़ा भी कागज है, और हमारी जो नोट है वो भी कागज है। लेकिन क्योंकि उसको आरबीआई ने एक मान्यता दी है कि ये चलन के तौर पर यूज होगा, ये जो कागज का पन्ना है चलन के तौर पर यूज होगा, है ना? इससे लोग आदान प्रदान करेंगे और व्यवहार करेंगे अपना। लेकिन एक साधारण कागज के टुकड़े को इतना महत्व नहीं होता। इसी प्रकार से जितने भी किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, जिसके मन में आता है वो कुछ भी किताबें लिख देता है, ठीक है ना? इसे प्रभुपाद प्रजल्पा बोलते थे। जैसे प्रभुपाद बोलते थे, जो लोग अभी इतने फालतू की बड़बड़ करते हैं ना, जो प्रजल्पा मतलब क्या बेसिकली, जो कृष्ण के अलावा जो बातें हैं उसको बोलते हैं प्रजल्पा। उसमें सब आ गया, पॉलिटिक्स आ गया,
सास बहू की सीरियल आ गई, ठीक है ना, सारी चीजें है ना, क्रिकेट आ गया, सारी चीजें आ गई। तो इसे बोलते हैं प्रजल्पा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रजल्पा। तो ये जो भगवत गीता है, इसने भी एक ये तो है, एक कागज ही है, एक जड़ चेतना वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, ये कागज ही है, ठीक है। लेकिन ये एक नॉर्मल किताब नहीं है, जो कि ये भगवान के द्वारा प्रमाणित है, भगवान की वाणी है इसमें, तो ये भगवान के समान ही दिव्य है। भगवत गीता जो है भगवान के समान ही दिव्य है। इसलिए हम ये नहीं है कि ये एक कुछ किताब है छाप दी है इस्कॉन वाले ने, ये नहीं है इसका, ठीक है। तो ये महत्व है भगवत गीता का, ठीक है। तो पांडवों ने ये सब नहीं सोचा कि वहाँ पे कैसे हम राज्य बनाएंगे। जैसे एक अच्छा प्रचारक ये नहीं सोचता कि यहाँ पे कैसे प्रचार होगा, यहाँ पे कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, ये सब नहीं सोचा पांडवों ने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बड़ा ही अच्छा राज्य प्रस्थापित किया। उसके बाद लोग धीरे धीरे करके आने लगे, रहने लगे। हस्तिनापुर में उनका 5 BHK अपार्टमेंट था, 3 BHK था, 4 BHK था। लेकिन ये इस यहाँ पे खांडोग्रस में 1 BHK है ना, 1 RK, 2 BHK ऐसा ऐसा था। लेकिन फिर भी लोग वहां से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे, क्यों? क्योंकि ये जो पांडव जन थे, इनसे ये स्नेह करते थे, क्योंकि उनको पता था ये सज्जन लोग हैं, हाँ ये सज्जन लोग हैं, ठीक है। और पांडवों ने अपने मेहनत से इस राज्य को बनाया था, है ना, किसी ऐसे ऐसे फुकड़ में नहीं मिली थी उनको ये जमीन, ठीक है। उसके बाद वो अपना अच्छे से राज्य करते हैं, राज्य चलाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मा जी उनके घर पे आते हैं एक बार, है उनका सब राज्य सब सेटल हो गया है। ब्रह्मा जी नहीं, सॉरी, नारद मुनि, नारद मुनि उनके घर पे आते हैं। फिर नारद मुनि देखते हैं कि अच्छा ये युधिष्ठिर महाराज है, उनके 4 भाई हैं और उनकी 5 की एक पत्नी है। तो वो सोचते, फिर वो युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। एक नारद मुनि बोलते हैं कि युधिष्ठिर, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ, शुंड और उपोशुंड की, ठीक है। और ये कथा मैं आपको अभी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि 8:27 हो गए हैं, कुछ वक्त लेट आए थे, क्योंकि ये कथा थोड़ी लंबी है शुंड और उपोशुंड की। तो यहाँ पे हम विराम देंगे आज के लिए, ठीक है। तो थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा कर लेंगे, बातचीत कर लेते हैं आपसे। कौन कौन भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। और कोई भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? अच्छा, मतलब बाकी सब भक्त नए हैं शायद। नहीं प्रभु जी, कोशिश जारी है मगर हो नहीं रहा है। हरे अरे, कृष्ण। कोशिश जारी है, ये कोशिश ही है, ये जी कोशिश है ना, ये भक्ति का अंग है, ठीक है? जो होना ना होना, जी प्रभु जी। हाँ, होना ना होना ये कल भगवान को। भी कल भी एक दिए थे, एक भगवत गीता आज भी दिए प्रभु जी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए थोड़ी सी कल बातें हैं। पूरा दिन लेके ट्रेन पे घूमे थे प्रभु जी, 3-4 भगवत गीता पूरा दिन ट्रेन पे लेके घूमी, मगर नहीं गया, एक ही गया बस। अरे वो महादेव, आप ट्रेन, बहुत बहुत बढ़िया बात है। आप इतना प्रभुपाद की सेवा के लिए इतना प्रयास कर रहे हो। थोड़ी सी बातें हैं प्रभु जी सब एक पहले भगवत गीता का नाम सुन के ही पहले हाथ जोड़ने लगते हैं, नहीं नहीं माता जी नहीं चाहिए मेरे को, प्लीज ये मेरे सामने मत। ये अभी बोलना ही नहीं, बोल ही नहीं पाते फिर प्रभु जी उनके सामने, कुछ क्या बोलूं, कैसे समझाऊं उनको। हाँ, हाँ, वही चर्चा करेंगे हम थोड़ी थोड़ी देर। देखिए जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं ना, थोड़ी सी बातें हमें याद रखनी है। जैसे अभी कोई कोई हमें मिलता है, तो उसे हम ना पहली बात तो स्माइल करके मिले, ठीक है। अगर हम ऐसा लेके जाए कि जैसे मैं घूमता हूँ दुकानों में, तो उस दिन मेरे थोड़ा पेट दुख रहा था, तो मैं ऐसे हरे कृष्णा भगवद गीता लीजिए। मैंने खुद ने सोचा कि फिर वहाँ पे ना आईना था, मैंने खुद ने देखा कि मैं कितना सड़ा हुआ मुंह करके बोल रहा हूँ कि भगवद गीता लीजिए। तो फिर और मैंने लेक्चर में भी सुना है ये, कि हम जब किसी के पास जाते हैं भगवद गीता लेके, हरे कृष्णा प्रभु जी भगवद गीता लीजिए, भगवान का महत्वपूर्ण संदेश है ये, है ना, है ना। हम हर एक मनुष्य को ये पढ़ना चाहिए, जो मनुष्य है वही पढ़ेगा इसे, है ना। तो ये ऐसी सारी बातें हमें हंस के बोलनी है उनको, ठीक है। और धीरे धीरे हमसे उनको कनेक्ट करना है वो। और हमें ना पहली बात तो हमें ज़्यादा, पहला हमारा मोटो ये होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए, है ना। जैसे समझो 1 घंटे में आप 50 लोगों से मिलने चाहिए आप, ठीक है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझो कोई तर्कवादी मिला, टाइम पास करने वाला, वो आया और हमारे पास आने के बाद उसने बहुत हमारा आधा घंटा उसने ही ले लिया और आधा घंटा होने के बाद उसने हमारे से भगवत गीता ली नहीं। तो क्या हुआ कि इस मामले में क्या हो गया, बाकी के जो भक्त थे, बाकी के जो अन्य जो लोग थे जिनसे आप मिलने वाले थे और हो सकता है वो आपसे लेने भी वाले थे, लेकिन आप उनसे मिल नहीं पाए। क्यों? इस एक व्यक्ति के कारण। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट व्यतीत करना है उस व्यक्ति के साथ, है ना? जो जिसे हम भगवत गीता देने जा रहे हैं, ठीक है? और अन्य भक्त जो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, उनको मैं बता दूँ, मेबी आप इस्कॉन में थोड़े नए होंगे, तो इसका अभी इस्कॉन आप सोचोगे, आप ऐसा मत सोचना कि इस्कॉन कुछ अपना ये क्या कर रहा है, अपना बिना बिन पगारी फुल अधिकारी, ऐसा ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है इस्कॉन का। ये बस एक सेवा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये भगवान की जो भगवत गीता है ये पहुँच सके, ठीक है? क्योंकि मैं विदेश में था, एक मुस्लिम कंट्री में था मैं पिछले साल। तो उस मुस्लिम कंट्री में मैं जब मैं उस होटल में जब रहा था, तो उस होटल में मैंने जब वो कबर्ड का ड्रॉवर खोला, तो उसमें मुझे क्या मिला पता है आपको? कुरान मिला। क्या मिला? कुरान, है ना? जो उल्टा पढ़ते हैं ना वो लोग, वो वाला कुरान। तो और उसमें वो जो चद्दर होता है ना उनका, वो भी था, एकदम नया था, ऐसा भी नहीं धूल-वूल पड़ी है। और ये फिर मेरे दिमाग में आया कि ये लोग अपने धर्म से कितना प्यार करते हैं, है ना? ये कितने अपने धर्म को एकदम डेडिकेटली फॉलो करते हैं। सोचिए, एक 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 होटल के एक कमरे में 500 कमरे थे वो होटल में। एक होटल के एक कमरे में अगर वो कुरान है, तो पूरे होटल में कुरान नहीं होंगे? होंगे। पूरे होटल में छोड़ो, फिर वो एरिया के हर एक के घर में तो होंगे ही होंगे। तो पूरे देश का क्या कहना? पूरे देश में कुरान है ही है फिर। तो हमें ये सोचना है कि हमारे देश में क्यों नहीं है ऐसा? हमारे देश में भगवत गीता स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन हमारे देश में मदरसों में ये इनका कुरान का जो काफिरों को काटना, मारना, ये सब सिखाया जा रहा है। और हमारी भगवत गीता जो कि एक लाइफ मैनुअल है, ये धार्मिक किताब भी नहीं है, बल्कि ये जो कुरान, बाइबल, ये धार्मिक किताबें हैं। लेकिन ये जो हमारा जो भगवत गीता है, ये लाइफ ऑफ मैनुअल है। और मनुष्य जन्म लिया है, तो ये मनुष्य के शरीर को कैसे यूज़ करना है, उसका ये मैनुअल है, ठीक है? और हमारे ही देश में हमारी ही भगवत गीता बैन है स्कूलों में, कॉलेजेस में। क्यों? ये क्यों? ये हमारे कहीं कहीं न कहीं हम भी इस समाज का हिस्सा है। कहीं न कहीं हम भी इस समाज का हिस्सा है कि हम ज़्यादा इतना काम नहीं कर रहे, हमारे धर्म का प्रचार करने के लिए, है ना? हमारा धर्म मतलब वैसे तो सनातन ही है हम, है ना? ममे वांचो जीव लोके जीवभूत सनातन, भगवान गीता में बोल रहे हैं। तो ऐसा ऐसा है कि ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई, ये सब ये भगवान के अंश नहीं है, ये भी भगवान के अंश है। लेकिन हमें ये फ़र्क देखना है कि एक मुस्लिम कंट्री में, एक होटल के अंदर, एक कमरे के अंदर, एक कबर्ड में कुरान रखा जा रहा है, तो हमारे देश की स्थिति क्यों नहीं है ऐसी? बल्कि हमारा ग्रंथ, कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारा ग्रंथ ये वाक़ई में महान है, ठीक है ना? क्योंकि ये एक किसी पर्टिकुलर लोगों के बारे में नहीं बोलता, किसी पर्टिकुलर समाज के बारे में नहीं बोलता, किसी एक विशिष्ट ग्रुप के बारे में नहीं बोलता, एक समूह के बारे में नहीं बोलता, ये पूरे मानव समाज के बारे में बोलता है। जिसने मनुष्य जन्म लिया है, उसके बारे में बोलता है, ठीक है ना? तो ये लाइफ ऑफ मैनुअल है। हम बार-बार बोल रहा हूँ, ये लाइफ ऑफ मैनुअल है। ये कोई ऐसी धार्मिक किताब नहीं है ना? तो ये हम इतने कन्विंस्ड होने चाहिए कि हमारे भगवत गीता में कितनी कितनी महान है हमारी भगवत गीता, ठीक है? ये पहले हमें ये रियलाइज़ेशन होना चाहिए, ठीक है? बाद में फिर भी जब हम लोगों को मिल रहे हैं, पहले हमें ये देखना है कि कनेक्शन हमारा बन रहा है क्या? अगर वो व्यक्ति तभी लेगा, वो व्यक्ति भगवत गीता तभी लेगा जब उसके पास भक्ति उन्मुख सुकृति होगी। भक्ति उन्मुख सुकृति, मुक्ति उन्मुख सुकृति और भुक्ति उन्मुख सुकृति। अगर तीनों में से उसके पास भक्ति उन्मुख सुकृति अगर होगी, वो व्यक्ति तभी लेगा। और वो हमें डिटेक्ट करना है कि अच्छा, अगर वो ऐसा करे कि अरे चलो निकलो, निकलो इधर से, ऐसा कर रहा है, तो उसको हम कन्विंस करने नहीं बैठेंगे कुर्सी डाल के, वो टाइम वेस्ट है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर कोई भगवत गीता को देखा और थोड़ा-सा मिलते हैं ऐसे, देखते ही रह गया और फिर सोच रहा है, जो ऐसा मिले ना उसको तुरंत पकड़ लेने का, उसको थोड़ा-सा फिर गीता खोल के दिखाने का, देखिए प्रभु जी इसमें ये जो श्लोक है, और हम में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि हम
कोई भी पन्ना उठा के देखे ना, जो भी श्लोक होगा वो हमें पढ़ना आना चाहिए, है ना? पढ़ना आना चाहिए, पढ़ के हम बोले कि अभी देखो, मैं करता हूँ, जैसे पढ़ लिया मैंने श्लोक को, मैं बोलता हूँ अभी ये ना आपको समझा ना मुझे समझा, पूरा दोनों के दिमाग में से गया। इसीलिए प्रभुपाद ने क्या किया, वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग के बाद पूरा तात्पर्य दिया है ना, उसको पूरा वो पूरे श्लोक के बारे में क्या बोलना है उसके बारे में दिया है। और मैं बोलता हूँ कि अर्जुन इतना महान था, है ना, कि उसको 45 मिनट में भगवत गीता समझ गया। लेकिन हम कलयुग के बुद्धू जीव, है ना, बद्ध बुद्धू जीव, हम नहीं समझ पाएंगे इतना। इसलिए प्रभुपाद की बड़े बड़े तात्पर्य ये हमें पढ़ने चाहिए, तो हम जाके कहीं भी तो गीता का थोड़ा सा ज्ञान समझ पाएंगे। तो ये हमें उनको बताना है कि हमारी गीता में कितना डिटेल एक्सप्लेनेशन है ना। ठीक है, तो ये ऐसे हमें थोड़ा सा उनको, हमें एक स्पार्क देखना है, क्या उसमें वो स्पिरिचुअल स्पार्क है, वहां पे हमारी आग आग जलानी है। ठीक है, तो वहां पे हमें उस फायर को जलाना है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स है, और ऑफ कोर्स टेक्निक आप कितने भी लगा लो, गुरु गौरंग की कृपा नहीं होगी तो एक गीता भी नहीं जाएगी, एक गीता भी नहीं। गुरु गौरंग की कृपा नहीं होगी तो पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन से पहले क्या करें, ओम ज्ञानवित्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रार्थना जरूर करें, प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थना के बिना कुछ कुछ संभव नहीं है। बिना प्रार्थना के तो हम ऐसे डेड बॉडी है, बिना प्रार्थना के। जैसे एक शरीर में आत्मा होती है तो वो शरीर चल पाता है, वैसे एक भक्त के पास कृपा होगी तो वो प्रचार कर पाएगा, तो वो भक्ति कर पाएगा। कृपा का बहुत महत्व है, और कृपा की याचना करें वरिष्ठ वैष्णवों से, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों से। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल है? ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के सत्र को विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, विश्वभूषण मंत्र की जय, महाभारत कथा की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पंचांग प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। नरसिंह माता जी को, प्रभु जी को प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम।